Good morning and Jai Hind children. How are you? I hope you all are fine. Children, in our previous class, we have started a new chapter, right? Chapter 4, Democracy. And we have discussed some topic, right? Which was the topic, children, that we have discussed? We have discussed about introduction of democracy, representative democracy, elections, and right to vote. So these were the topic which we have discussed in our previous class. And children, I have asked you to read the topic. So have you revised the topic? I hope you all must have revised the topic. So children, today we will be discussing some more new topic. Okay, so today we will discuss about formation of the government, opposition, and features of democracy. So these are the topic which we are going to discuss in our today's class. So children, everyone, please open your textbook and carry one pencil in your hand. Okay, if some words are difficult to understand, please mark it and note down in your rough copy and even try to find out the meaning. Or you can ask to me also during the question answer time. Okay, during the queries time, you can ask your queries. So children, wait a minute. I am sharing the screen. Yes. Children, it's mandatory for all to attend the class. Okay, so don't go anywhere. Be present. So, yes. So, our chapter number is 4, Democracy. Right? See, now children, what is politics? क्या है पॉलिटिक्स चिल्ड्रेन? आपने सुना होगा पॉलिटिक्स के बारे में, राइट? अब पॉलिटिक्स में इज द वे that people living in group they make decisions, right? So politics is a organization children. It is a group of people who comes together. They contest elections and hold power in the government, right? So they make the decision for the welfare of the people. They solve the problems. So politics is about making agreement between people so that they can live together in groups such as tribes, cities or countries, right? तो हमारी कंट्री चिल्ड्रेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट? एंड we have representative democracy. That means we have chosen our leader, right? We have elected our representative who will make the laws for us, who will work for the welfare of the people. So जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सारी चीज़ें जो है देखेंगे, राइट? लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों की विशेस हैं, वो सारी चीज़ें वो पूरी करेंगे लोगों की, राइट? दैट इज़ व्हाई वी हैव इलेक्टेड अवर लीडर, राइट? उनको पावर किसने दिया है, राइट? हम लोगों ने उनको चूज़ किया है, राइट? और अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम? We are not going to vote that person in the next election, right? Now, political party. Now, what is political party? A political party, children, is a group of people who comes together और वो क्या करते हैं? इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज फॉर्म करते हैं, ओके? इलेक्शंस में खड़े होते हैं और जिस पार्टी को भी ज़्यादा वोट मिलते हैं, मेजॉरिटी वोट मिलते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, राइट चिल्ड्रेन? तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि उनको मेजॉरिटी वोट्स, मेजॉरिटी सीट्स जो है वो मिलनी चाहिए, तो वही पार्टी फॉर्म कर सकते हैं. Party reflect fundamental political division in society. So these political parties, they will form the government, they will make the laws, they will share their views, ideas, okay? And party involve partnerships. तो जो पार्टीज को मेजॉरिटी सीट्स मिले, दे विल be called as ruling party or majority party, and the party
who comes second, they will called as opposition party. So these both the parties, they will come together, they will share their views, ideas. Okay, so they will work together, they will cooperate with each other. Understood? Now, political parties. A group of people who share similar views on the country's political issues. जो भी कंट्री से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, ओके, वो इस इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वो फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी. तो अपनी जो व्यूज, आइडियाज, आइडियोलॉजी जो भी है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. एक कॉमन चीज़ें वो लोग डिसाइड करेंगे, राइट. They have a common objective, values and goals. Political party play an important role in modern democratic countries. तो political parties की बहुत ज़रूरी है, right children? अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो क्या होगा चिल्ड्रन? सभी लोग इंडिपेंडेंटली रूल करने की कोशिश करेंगे, कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पाएगा, राइट. सभी लोग अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, तो कोई एक पर्टिकुलर कोई डिसीजन ले पाएगा नहीं, कोई किसी की बात सुनेगा नहीं सुनेगा. तो इसीलिए कि हमारे कंट्री में इलेक्शन प्रोसेस किया जाता है, राइट. हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओके, जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, राइट. हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम उन तक पहुंचाते हैं एंड दे विल वर्क अकॉर्डिंगली, right. So that is why political party play an important role in our modern democratic countries. A party can gain power through elections. अब ये पार्टी को पावर कहाँ से मिलता है चिल्ड्रेन? थ्रू इलेक्शंस. इलेक्शंस में अगर जब उनको वोट मिल जाता है, मेजॉरिटी वोट, तो वो पावर में आ जाते हैं, राइट. दैट मीन्स उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है. दिस पार्टी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. और इनका काम क्या है चिल्ड्रेन? लोगों की भलाई करना है इनको, राइट. And act as a link between the government and citizens. So this party, they act as a link or between the government and the citizens. गवर्नमेंट क्या क्या फैसला ले रही है, क्या क्या काम कर रही है, ये सारी चीज़ें, राइट. तो हम अपनी आवाज़, हम अपनी, अगर सोसाइटी में फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कोई वाटर सप्लाई की कुछ इश्यूज आ गए या इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रॉब्लम, तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ना, हमारे यहाँ जो लीडर होंगे, जो नगर सेवक होंगे, उनके पास हम जाते हैं ना अपने प्रॉब्लम्स लेकर, राइट. कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ इसको देखिए. तो वो हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं ना, राइट. और उस हिसाब से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वो कोशिश करते हैं, राइट. Now, political party that get maximum number of votes in election is known as majority party. So, जिस पार्टी को भी मेजॉरिटी वोट मिलता है, ओके, मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं, वो मेजॉरिटी पार्टी कहलाती है. और दैट मेजॉरिटी पार्टी इज नोन एज रूलिंग पार्टी, ओके, एंड दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट. एंड द सेकेंड लार्जेस्ट जिनको वोट्स मिले हैं सेकेंड, ओके, इन द लोकसभा, दे फॉर्म द अपोजिशन पार्टी. So the second largest number of seats in Lok Sabha जिनको वोट्स मिले हैं, वो फॉर्म करते हैं अपोजिशन पार्टी, वो होती है. तो एक होती है रूलिंग पार्टी, एक होती है अपोजिशन पार्टी, ओके. नाउ व्हाट विल पॉलिटिकल पार्टीज डू टू गेट योर वोट? ओके, क्या करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को? वोट, अभी बिना वोट जीते तो वो पावर में नहीं आ सकते ना, राइट. उनको वोट तो बहुत ज़रूरी है. So during the run up to an elections के समय political party they will pledge to do certain things. Okay, वो pledge लेते हैं कि हम ये काम, ये सारी चीज़ें जो है वो करेंगे, देश के लिए करेंगे, सोसाइटी के लिए करेंगे, स्टेट के लिए करेंगे, okay, for the welfare of the people they will work. तो वो हमसे बड़े बड़े जो है वादे करते हैं, राइट. तो वो they do the promises कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें सॉल्व कर देंगे, राइट. ये सारी चेंजेस ले आएंगे सोसाइटी में. एंड ट्राई टू सिक्योर आवर वोट्स. तो वो हमारी वोट कोशिश करते हैं कि वो हमें दें, हमें चाहते हैं कि आप किसी तरीके से भी जो है आप हमें, हमारी तरफ ही, हमें ही वोट दीजिएगा. दिस इज़ प्लेस्ड. और ये सारी चीज़ें जो वो कहते हैं कि जो उनकी प्रोमिसेस होती हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे,
तो वो सारी चीज़ें किस में लिखी जाती है चिल्ड्रन, एक मैनिफेस्टो होता है ना. व्हाट इज मैनिफेस्टो चिल्ड्रन, सी इट इज़ अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी एंड एम्स. उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती है कि अगर वो एक बार इलेक्शन में जीत जाती हैं तो उनको ये सारी चीज़ें जो उन्होंने कही थी वो ये सारी चीज़ें उनको पूरी करनी है जो उसमें लिखी गई है. स्पेशली वन इशूड बिफोर एन इलेक्शन बाय एन पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट. तो ये जो होता है मैनिफेस्टो चिल्ड्रन बिफोर इलेक्शन होता है, राइट. एक चीज़ों में एक स्टेटमेंट की तरह होता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती है कि वंस दे आर इलेक्टेड दे केम इनटू पावर दे आर गोइंग टू फुलफिल ऑल दिस थिंग्स. अंडरस्टूड. Now see, I will show you the picture of it. So children, of manifesto. See children, this is the key point of the BJP manifesto, right? So here see some points children, only some points we will discuss. Okay, see, to solve the grievances of the people with regard to electrical. लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से हो, वाटर से हो या कोई अदर प्रॉब्लम्स, they will try to solve, providing assistance, help and to avail the all government scheme for welfare. जो स्कीम सारी चीज़ें जो निकलेगी लोगों के भलाई के लिए वो की जाएगी, निकाली जाएगी. ओके, जो भी लॉज वगैरह बनाए जाएंगे दैट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. कंडक्टिंग करियर गाइडेंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कूल, कॉलेजेस. ओके, तो ये सारी चीज़ें खोली जाएगी वंस दे केम इनटू पावर. और सी हियर आल्सो building a Ram temple at disputed site Ayodhya within the constitutional framework. So ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ओके, तो ये इसको कहा गया है चिल्ड्रन मैनिफेस्टो. तो ये एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें कुछ की पॉइंट्स लिखे होते हैं कि वो ये सारी चीज़ें जो है एक बार उनको उनकी सरकार बन गई तो वो ये सारी चीज़ें लोगों के लिए करेंगे. अंडरस्टूड. सो हैव यू सीन व्हाट इज मैनिफेस्टो. ओके, सो कुछ मैनिफेस्टो कुछ लोगों का रिटर्न में नहीं होता है, समटाइम्स इट इज़ ओरली ऑल्सो. ओके, कुछ जो लोग होते हैं दे डू द फॉल्स प्रोमिसेस ऑल्सो, बट सम ओनली फुलफिल ऑल दिस थिंग्स. ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दे एजुकेट द masses. Masses means what? Group of people through their meetings and propaganda. Now through प्रचार वगैरह जो एडवर्टाइज करते हैं, राइट, अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स. कंट्रीज में जो जो प्रॉब्लम है, ओके, जो कंट्री फेस कर रही है उसी सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. दे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. सो दे फाइट इलेक्शंस एंड दे ट्राई टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्टेड. तो उनको इलेक्शंस में खड़ा होना होगा और उनको क्या चाहिए चिल्ड्रन, दे वांट द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ देयर कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड. द पार्टी विच गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर फॉर्म्स द गवर्नमेंट. और जिनको अभी हर एक जगह से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चिल्ड्रन कैंडिडेट खड़े होते हैं, राइट, तो उनको क्या चाहिए, उनको मैक्सिमम वोट चाहिए अगर उनको पावर में आना है तो, राइट. नाउ सो जिनको ज़्यादा वोट्स मिल गए दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. एंड द अदर पार्टी चिल्ड्रन वी हैव सीन दैट पार्टी इज कॉल्ड एज ऑपोजिशन पार्टी. जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑपोजिशन पार्टी. और ऑपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है चिल्ड्रन, दे क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, अगर इनकेस मेजॉरिटी पार्टी ने कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई, ओके, जो अकॉर्डिंग टू अपोजिशन पार्टी उनको लगा कि इधर कुछ चेंजेस होनी चाहिए, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, सो ही विल क्रिटिसाइज, यू शुड चेंज ऑल दिस थिंग्स. ओके, वो उनको बताएंगे कि इस तरीके का. तो जो अपोजिशन पार्टी है उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है. मीन्स दोनों पार्टीज को मिलकर सारे जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, लॉज जो बनाए जाते हैं सभी को मिलकर बनाना है. सबको एक साथ कोऑपरेट होकर काम करना है सारी चीज़ों में. And check it from becoming despotic. They serve as a link between the government and the people. So they also perform several social welfare functions and help the people during natural calamities. अचानक से अगर कुछ और भी चीज़ें घट जाती हैं, राइट, जैसे सपोज कुछ अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फैमाइन, सुनामी या कुछ और चीज़ें, तो इसमें गवर्नमेंट हमारी किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है. जो पीड़ित लोग हैं उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें, वो क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या मेजर्स ले रही हैं, तो ये सारी चीज़ें किसका काम है चिल्ड्रन देखने का, गवर्नमेंट का काम है, राइट. इवन एवरी वन शुड हेल्प
each and everyone. Now formation of the government. See children, now I have shared the textbook page on the screen. Okay, so with the help of the textbook also we will revise once again, but in short we are going to revise. Okay, now see, the party that wins the majority seats in the legislature, they form the government. Representative democracy means the rule of the majority. तो हमारी कंट्री क्या है चिल्ड्रन, हमारी कौन सी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और जिनको मेजोरिटी मिलता है दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट। तो द गवर्नमेंट शुड रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मैनी टाइम्स वन सिंगल पार्टी डज नॉट, कभी कभी क्या होता है किसी एक पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलता है, राइट। उस केस में क्या होगा चिल्ड्रन, उस केस में बहुत सारी जो पार्टी होगी दे विल come together, right, and they will form the coalition government. So they will share their views, ideas with each other, they will cooperate with each other, okay, and that then only it will work smoothly. So this is known as coalition government. When many parties they come together, they form the government, and that government is known as coalition government. Alternatively, the political party with the largest number of seats can form the government if it receives the support of the other parties. और कुछ parties, कुछ लोग independently भी खड़े होते हैं, right? Some of them form independent, some are there are independent candidate also. Now opposition party, the second largest party children, that party is called as opposition party, right? So that party जिनको, those who are in minority, the party that are in minority are called as opposition party, they form the opposition. The minority also has children important role in the government of the country. So both majority as well as the minority, they are meant to work, cooperate, they work together for the welfare of the people, and the majority cannot ignore the opinion of the minority, and it is the duty of the minority. ओके तो जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, जो भी माइनॉरिटी जो है, ओके ग्रुप, वो उनको मेजॉरिटी को सुनना ही होगा। माइनॉरिटी जो भी बातें कहेंगी, जो भी व्यूज़, अगर अपना कुछ आइडियाज़ शेयर करना चाह रही है, अगर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रही है, तो उनकी बातों को भी सुना जाए। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी ग्रुप है वो अपोजिट, तो उनकी बातों को ना सुना जाए, उनकी बातों को रिजेक्ट कर दिया जाए, ओके ऐसा नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी पार्टी जो है वो उनकी बातों को भी सुने, राइट। और माइनॉरिटी का भी ये फर्ज बनता है टू सपोर्ट द मेजर्स एंड पॉलिसीज दैट विल बेनिफिट फॉर द कंट्री। जो भी चीज़ें कंट्री के बेनिफिट के लिए, जो भी डिसीजन लिया गया है उसमें वो उनका साथ दे, ओके और दोनों पार्टीज मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें, एग्री करें। Now features children, we will see features of democracy. Now there are certain conditions essential for successful working of a democratic country. Awareness among citizens. Now first point children is what you should remember, which are the points, okay. So first point is awareness, right, that means to aware, right. In democracy the people must be aware of their राइट्स। हमारी राइट्स क्या है चिल्ड्रेन, यस आप लोग को पता होगा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी राइट्स है ना, तो हमें सभी को पता होनी चाहिए, राइट। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू वोट, ये सारी क्या है, ये सारी हमारी राइट्स है जो हमें सभी को पता होनी चाहिए, हमें सभी को अवेयर होना चाहिए, जिससे हमारी राइट्स को कोई हमसे छीन ना सके, हमारी राइट्स कोई वॉयलेट ना कर सके, राइट। और अगर हमारी राइट्स को कोई छीनने की कोशिश करेगा, सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन, राइट। सो अवेयर ऑफ देयर राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज, तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी है, राइट, तो वो भी हमें फॉलो करनी है। They should also keep themselves informed about the functioning of the गवर्नमेंट किस तरीके से क्या काम कर रही है, ओके वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पॉलिटिकल अवेयरनेस इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी।
Yes. Okay. So people must be aware of right as well as duties. Now next point is children what? That is enlightened and wise leadership. What do you mean by enlightened children? That means you should be informed, you should be knowledgeable. Okay. You should be educated, broad minded. It is assumed that enlightened voters are led by wise and enlightened leadership. Okay. So you should know each and everything what is going on in our surrounding. What are the policies, programs, what are the laws have been taken, what are the changes are being made. Okay, so that all the information we should keep, and it is the duty of the government. Okay, with the help of the media, they should pass the messages, they should pass the information to all of us. Now, sound public opinion. Now, what is public opinion, children? The opinion of the people on issues and matters of public concern, welfare, okay, is called a public opinion. So, a democratic government is based on a public opinion. लोग क्या चाहते हैं, right? उनकी क्या डिमांड्स है, उनकी क्या विशेष है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है. ओके, तो इसमें जो लोगों की बातों को सुना जाए, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए, क्योंकि हाँ, ये लीडर्स कैसे बने चिल्ड्रन, इनको हमने पावर्स दिया है, राइट, हमने उनको चूज किया है, तो उनको हमारी बात सुननी होगी, राइट. इफ यू वांट समथिंग, तो उनको जो है हमें वो पूरी करनी होगी, हमारी जो डिमांड्स हैं, राइट. इफ वी आर इन ट्रबल, दे हैव टू हेल्प अस, राइट. इफ दे आर नॉट गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, सो हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट. So, if sound public opinion is formulated and properly expressed, the government cannot ignore or harm the rights of the people. So, the opinion of the people on issues and matters of public concern and welfare is called a public opinion. So, it may not be the opinion of all the people. It may be the generally the opinion of the majority of the people. अब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ों को लेकर सभी लोग उसमें एग्री करें, ऐसा ज़रूरी नहीं. हो सकता है कुछ डिसीजन जो भी लिया गया हो, ओके, उसके लिए कुछ जैसे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, हमने देखा था रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, which where special status were given to Jammu and Kashmir. ओके, फॉर एग्जांपल वो केस ले सकते हैं. देन ट्रिपल तलाक का भी केस. तो ऐसा नहीं कि सभी लोगों का ओपिनियन हमें मिले, हो सकता है कुछ लोगों का मेजॉरिटी भी हो, राइट. इट मे जनरली बी द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, एंड एट टाइम्स इवन अ माइनॉरिटी मे एक्सप्रेस एन ओपिनियन which may be the interest of the entire community. So the minority people, they can also express their opinion. So सभी लोगों का opinions important है, सभी लोग जो भी कह रहे हैं वो सभी के opinion को consider किया जाना चाहिए, right. अगर कोई अपना opinion share कर रहा है तो उनकी opinions को सुना जाए, समझा जाए, and then final decision should be taken for the welfare of the people. सिर्फ एक ही इंटरेस्ट को देखकर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट, टॉलरेंस. व्हाट इज टॉलरेंस चिल्ड्रन? इन सिंपल यू कैन से पेशेंस, राइट. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन बाय द मेजॉरिटी, बट द माइनॉरिटी मस्ट बी अलाउड टू हैव इट से मीन्स व्हाट, बोलने का अधिकार होना चाहिए, वो भी अपने व्यूज आइडियाज शेयर कर सकें, राइट. उनकी भी बातों को समझा जाए, सुना जाए. एंड इनटॉलरेंट मेजोरिटी कैन डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, राइट. तो अगर इनटॉलरेंट मेजोरिटी हो तो वो क्या डिस्ट्रॉय कर देगी, जो हमारी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जो हमारी लिबर्टी और इक्वालिटी पे, फ्रीडम, ओके, लिबर्टी मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, इन सिंपल टाइम यू कैन से फ्रीडम और इक्वालिटी पे जो बेस है वो नहीं हो पाएगा, राइट. हमारी कंट्री फिर एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, ओके, अगर ये सारी चीज़ें अगर ना हो तो. इट इज़ एसेंशियल दैट द मेजॉरिटी हैज़ अ फ्रीडम टू रूल एंड माइनॉरिटी हैज़ अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन, ओके. तो मेजॉरिटी क्या करेगी चिल्ड्रन, इट विल रूल, एंड माइनॉरिटी दे शुड गेट द फ्रीडम टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन. नेक्स्ट, discipline citizens. Citizens should have a self control.
They should have the ability to give up self-interest for the welfare of the society. राइट केवल यहाँ पे हमें अपने बारे में नहीं सोचना है कि हमें जो चीज़ बेनिफिट होने वाली है वो चीज़ होनी चाहिए सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। हमें सभी लोगों के लिए देखते हुए कुछ जो भी लॉज है वो सारी चीज़ें बननी चाहिए, सभी लोगों का फायदा होना चाहिए, राइट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द एवरीवन, नॉट फॉर अ सिंगल person. It should be whatever the decision has been taken, it should be for the everyone, not for a single particular person. सिर्फ हमें अपना इंटरेस्ट देखते हुए कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है. Citizens should have the ability to accept the views of the majority even if they disagree. Now, discipline in political party. If parties are well organized and disciplined, the election will be smooth, right? अगर जो भी पार्टी है वेल ऑर्गेनाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है, तो सारी चीज़ें क्या चलेगी, अच्छी तरीके से चल रही, स्मूथली चलेगी, राइट? और गवर्नमेंट भी जो है वो अपना काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, राइट? पॉलिटिकल पार्टी शुड वर्क टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट. They must not be organized on parochial or communal consideration. Now, what is parochial, children? Parochial, that means narrow thinking, right? Or you can say narrow minded. हमें कभी भी ब्रॉड वे में सोचना है, हमें पूरी कंट्री के बारे में सोचना है, हमें अपनी पूरी स्टेट को लेकर सोचना है कि पूरी कंट्री की डेवलपमेंट कैसे होगी, प्रोग्रेस कैसी होगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में, हमारे स्टेट में. तो हमें सभी को, ऐसा नहीं कि केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, ऐसा नहीं है. हमें ओवरऑल सभी लोगों को सभी प्रॉब्लम्स को समझना है कि हमारे स्टेट के लिए अगर जो भी हम लॉज बना रहे हैं तो ये सभी के लिए होना चाहिए. ओके, सिर्फ एक ऐसा नहीं कि हम अगर लीडर हैं तो केवल हम अपनी रिलीजन के लिए काम करें या हम अपनी जो कास्ट है उसको फेवर करें, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए. जो हमारी जो कम्युनिटी है हम उसको ही कंसिडरेशन करें, उनको ही इम्पोर्टेंस दें, इस तरीके का नहीं होना चाहिए. नाउ दे शुड नॉट एनकरेज कम्युनलिज्म, राइट, कास्टिज्म और नैरो रीजनलिज्म, राइट. मैंने अपने कम्युनलिज्म बताया, राइट. वी हैव टू नॉट फेवर ओनली एनी पर्टिकुलर community or group of people, or casteism or narrow regionalism. So social and economic inequality. Now society should be free from narrow consideration of caste, subcaste, religion or language. ऐसा नहीं है कि हमें अपनी सोसाइटी को केवल हम अपने कास्ट को इम्पोर्टेंस दें, सबकास्ट, रीजन या लैंग्वेजेस हैं हम उन्हीं के लिए काम करें, ऐसा नहीं है. हमें अपने पूरे देश के लिए काम करना है, राइट. All sections of society should be equal partners in the development of the community. तो हमें सभी लोगों को मिलकर काम करना है, right? None should be denied the basic necessity of life. तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं सभी लोगों को मिलना चाहिए, right? जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, राइट, जॉब सभी लोगों को मिल सके कि एटलीस्ट उनको छोटा मोटा काम ही करके वो कुछ अर्निंग कर सके, राइट, अपनी फैमिलीज का को चला सके. सो दैट शुड बी इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, भले ही छोटा काम क्यों ना मिले बट सभी लोगों को सारी चीज़ें मिलनी चाहिए. सो चिल्ड्रन जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. Yes. So children, have you understood whatever we have discussed today? So children, today we have discussed about formation of government, opposition and features of democracy. Right children? So children, you will read this topic. Whatever we have discussed in our today's class, you are going to read it. And if any queries are there, you can ask me during the question ask time. Okay children? That's all for today. Goodbye children.